السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہم اعنی علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک. یا اللہ اپنا ذکر کرنے پر، اپنا شکر کرنے پر ہم سب کی اعانت فرما. یہ ساری میری پیاری پیاری بہنیں ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم عید کی خوشیاں منانے کے لیے یہاں ARYQTV کے سیٹ پہ موجود ہیں. جناب ہمارے ساتھ آپ کی پسندیدہ میزبان امتیاز آپا بھی موجود ہیں. آپا آپ کے مہمان رہ گئے تھے. جی ندا، تھینک یو سو مچ. وہ ہرے مہمان نا، ہرے مہمان رہ گئے. جی بے شک، اتنے خوبصورت ڈریس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں شگفتہ عمران. اور میں کہتی ہوں کہ جہاں یہ سیٹ پر موجود ہوتی ہیں وہاں خوشیوں کے رنگ بکھر جاتے ہیں. تو شگفتہ پہلے تو آپ میمنی زبان میں ہمیں ذرا عید کی مبارکباد دیجئے ناظرین کو اور ہم سب کو. مطلب آج پکا بھانڈا پھوٹ گیا. ہاں بالکل پھوٹا ہوا ہے پہلے سے، پتہ ہے پہلے سے ہی پھوٹا. نہیں، آپ مجھے کسی بھی زبان میں کہیں گی میں الحمدللہ اس میں وش کر دوں گی. اچھا، لیکن اب میمن کی بات ہوئی ہے. ہاں جی، تو پشتوں میں بھی کیجیے گا پلیز. پشتوں میں بھی کر دوں. اب یہ آج فل پٹائی والے معاملات ہو رہے ہیں. آپ نے کسی بھی زبان میں ہاں. کہا ہے. تو ایکسچینج سے بول دوں گی، نو پرابلم. اگر غلطی ہو گئی تو پھر پٹائی لگ جائے گی. بھائی آئی بدے کہ جتنی ایڈا پاکستان یا ملک پاکستان یا جتنا رہن وارا ان بدے کے دل جی گہرائیں سے گھڑی گھڑی عید مبارک. بالخصوص ARYQTV جے مالکان کے دل سے عید مبارک. بیکاز ہمارے مالکان ہمارے اسی زبان سے تعلق رکھتے ہیں تو پھر پہلے بنتا ہے ان کو عید نہیں مبارک تو دینا. اتنی جلدی آپ نے ٹریک کیوں چینج کیا؟ آپ اپنی زبان میں گئے نا. نہیں، یہ بات پھر آپ کی سمجھ میں نہیں آتی نا. میں نے کہہ دیا کہ سب کو دل کی گہرائیوں سے بہت بہت عید انگریزی مبارک. میمن ہے. اچھا شگفتہ یہ بتائیے عید کے دن کی خاص بات کیا ہوتی ہے آپ کے جب دن گزرتا ہے؟ عیدی. اب وہ لینی ہو دیتی ہیں یا لیتی ہیں؟ ہاں، دیتی بھی ہوں اور دیتی بھی ہوں. اور بچوں کے ساتھ کس انداز سے آپ پیش آتی ہیں؟ بچے جاتے ہیں؟ بالکل، میں بچوں کے ساتھ بالکل بچوں والے انداز میں رہتی ہوں. مما تو میں ہوں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے سب کی ماؤں کو. لیکن میں کہتی ہوں کہ بچوں کے ساتھ اگر وہی ماحول برقرار رہے بچپنے والا، تو ایک تو بچوں کا بچپنا قائم رہتا ہے، دوسرا ماں باپ بھی کبھی بوڑھے نہیں ہوتے. یہ زبردست انٹرنلی بھی. اور جو ماحول ہوتا ہے، جو باؤنڈنگ ہوتی ہے، جو جنریشن گیپ کی ہم بات کرتے ہیں، وہ کبھی نہیں آ پاتا. اور ویسے بھی ندا دل نرم رہتا ہے بچوں کے ساتھ. محبت سے بندہ کھیلتا ہے تھوڑا ان کے ساتھ. بالکل سچے اور پیور. تو وہی نا، پیور ہونا آپ کا چاہیے. دوسرا ہرا مہمان رہتا ہے. ویسے نیدا ہرا کام میں کھرا ہے نا آپا؟ ہرا کام میں کھرا، ہم لوگ ہرے ماشاءاللہ. کیا بات ہے، میرا خود پسندیدہ کلر ہرا ہی ہے. مانور ہمارے ساتھ موجود ہیں. مانور آپ بتائیے عید کیسی گزرتی ہے آپ کی؟ آپ تو خوب عیدی وصول کرتی ہوں گی. الحمدللہ عیدی بہت اچھے سے وصول کرتے ہیں اور عید گزارتے بھی بہت اچھے سے ہیں. تو رات سے کپڑے استری کر کے رکھے ہوتے ہیں آپ نے؟ پرس بھی اپنا سنبھال کے رکھا ہوتا ہے؟ تیاری جیسی ہوتی ہے بچوں کی. پرس تو پھر بہت زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے نا عیدی لینے کے لیے. تو ہم بس کیونکہ مانور کا تو ابھی وہی فیس چل رہا ہے نا. بالکل. تو وہ ایک پرس جو ہے نا بہت مین سی چیز ہوتی ہے. وہ سب سے پہلے ریڈی ہونا چاہیے کہ اس کے اندر ہی آنا ہے جو بھی آنا ہے. وہ بعد میں پہلے مما کے پاس چلا جائے بٹ آنا ہمارے پاس ہی ہے. پہلے دکھ بیان کر دیا مانور نے. عیدی میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے سب جب ماموں بھائی بابا ہم سب جب آتے ہیں عیدی نماز پڑھ کے، تو سب سے پہلے ان سے عید ملنے کے بعد سے پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ عیدی. تو پہلے عید ہی یا پھر عید کے کوئی گفٹس ہوں تو وہ لین دین، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس کے بعد تو پھر دوستوں سے ملاقات کب ہوتی ہے؟ آج بھی ہم نے آپ کو بلا لیا عید کے پروگرام کے لیے. دوستوں سے ملاقات یہ ہوتی ہے کہ کبھی اگر وہ لوگ بھی مصروف ہوتے ہیں، ظاہر عید جو ایسی ہوتی ہے کہ ہر کوئی اپنی فیملیز میں جو ہے وہ اس کو سیلیبریٹ کرنا زیادہ ضروری سمجھتے ہیں. اور ہمیں بھی یہی پرائیورٹی یہی ہوتی ہے کہ فیملیز کے ساتھ اگر خوشیاں بانٹی جائیں تو زیادہ اچھی بات ہے. مگر دوست بھی جو ہیں وہ اپنا مقام رکھتے ہیں. تو ہم عید کے 4تھ ڈے یا پھر فرسٹ یا سیکنڈ ڈے پہ رات میں یا شام میں تو ہم یہ ٹائم نکال لیتے ہیں تاکہ ہم اپنے فرینڈس وغیرہ کے ساتھ بھی مل سکیں. نیدا بچے بھی کتنا اچھا بولنے لگ گئے ہیں. زبردست. میں یہی سن رہی تھی، میں نے کہا لقمہ دینے کی تو حاجت ہی پیش نہیں آ رہی ماشاءاللہ بچی. اور وہ خرچ جو کرنا ہوتا ہے وہ ہاتھ کے ہاتھ ہوتا رہتا ہے، یہ سب پہلے جمع ہوتا ہے اور پھر کچھ مما کے پاس بھی تو جانا ہو. یہ بھی بات نہیں، میری عادت ہے کہ میں خرچ نہیں، اگر میرے پیسے میرے پاس ہوں تو مجھ سے گم ہو جاتے ہیں یا پھر خرچ ہو جاتے ہیں. تو میری عادت ہے کہ میں خود ہی جو ہے نا مما کو، مجھے کچھ بھی اگر میرے پاس پیسے ہوتے ہیں
तो मैं मम्मा को दे देती हूँ उससे पहले कि वो मुझसे गुम हो जाए। और अल्टीमेटली मम्मा ने आपके लिए ही कुछ बनाना होता है उससे। हाँ बिल्कुल। बेटियां और नहीं देती। मम्मा जो है वो हम बेटे पे ही जो अच्छा, है मेरे तो बेटे भी दे देते हैं। नहीं, मेरे बेटे नहीं देते। बहन मम्मा, पूछते हैं, आपको वहाँ कुछ से काम- नहीं जवाब आएगा। हमेशा मेरी मेरा दीदी तो के अभी अलावा भी बहुत कोई ही मना बहुत नहीं छोटे होती है। तो मैं मम्मा को दे देती हूँ, मम्मा अच्छे से सेव कर लेती हैं। और जितना वो हम नहीं देते, मतलब जितनी हमारी इतनी होती है उतना ज्यादा तो हम वो उनसे ले लेते हैं। तो उनका जो प्यार ये है, देखो, वही ये सबसे ख्याल ज्यादा आपका बहुत कितनी बड़ी अच्छी बात बात है। जबरदस्त वरना बात, बच्चों के बिल्कुल। पास 1-2-4 हज़ार रुपए आते हैं और उसके बाद वो भूल जाते हैं कि ऐसा सब जगह नहीं होता, लेकिन जहाँ होता है कि ये हमारे हैं। अगर बच्चा अभी से ये समझ रहा है ये हमारा तुम्हारा नहीं है, अम्मा और अब्बा ने हमारे लिए सारी जिंदगी किया है, तुम्हारा क्या है? बेशक मेरा बिल्कुल। ईदी कभी बच्चों की खत्म ही नहीं होती। मम्मा वो पैसे रखवाए थे, बेशक वो 10,000 मरतबा खर्च हो चुके हैं, हाँ, वो लेकिन वापस आ पैसे जाते हैं। रखे हुए आपके पास रखवाए थे, सही बिल्कुल, बिल्कुल 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 ऐसे। ज्यादा हम पे वो लगा चुके होते हैं क्या और हम बात, पे लग जाते हैं। क्या उससे बात, प्यार ही हमारे बहुत काम प्यारी बात, शाबाश। कि ये इसको भी हम कहेंगे नेमत की कदरदानी के वालिदैन। कितनी बड़ी शुमाइला, कितनी बड़ी नेमत है वालिदैन। और एक पेरेंट होने की हैसियत से मैं भी ये समझती हूँ, आपा भी और मेरी सारी बहनें जो यहाँ माएँ मौजूद हैं वो समझती हैं, तुम भी ये बात समझती हो कि माएँ अपनी औलाद के लिए और वालिदैन दोनों, चाहे वो बाप हो या माँ, इसका हाँ। जो अंदाजा और इसकी जो कदर सही मायनों में मुझे लगता है महसूस जब होती है कि जब आप खुद जी जब आप खुद इस नहज पे इस आते हैं, मनसब पर इस आते हैं, मनसब पे फाइज होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। वरना सही। उससे पहले होती है, मोहब्बत भी होती है, लेकिन उस तरीके से नहीं होती। हम वो चीजें फील नहीं कर पा रहे होते। जब अब्दुल्ला अहमद दुनिया में आए थे तो सबसे पहली फीलिंग यही आई, बार बार जो है वो अम्मी जहन में आ रही थी कि उन्होंने भी ये हमारे लिए इतना कुछ बर्दाश्त किया, तकलीफ सही, और हमें इस तरीके से उन्होंने पैदा किया और दुनिया में एक मकाम दिलाने के लिए परवरिश की। तो ये बड़ा, मैं कहती हूँ कि उनका नेमुल बदल कोई नहीं। वाह। माँ बाप आप सब कुछ कर सकते हैं, हर चीज़ आप जो है वो बिल्डअप कर सकते हैं, कुछ ख़त्म हो जाए, पैसे ना हो, दोबारा कर सकते हैं, शोहरत आपकी गिर रही हो, आप उसको दोबारा इज्जत बनाने के लिए कर सकते हैं, लेकिन माँ बाप मैं कहती वालिदैन हूँ कहाँ से लाई? कहाँ से लाएंगे? मतलब ये वो चीज है, माँ बाप वो चीज तो मैं नहीं बोलूंगी, वो रिश्ता है कि वो प्योरिटी नहीं ला सकते आप, नेमत ऐसी वो है। पैसों से नहीं खरीद Alternate नहीं सकते। है। नहीं, सवाल ऑल्टरनेट ही no पैदा नहीं होता compensation ना माँ बाप नहीं, का। नहीं। आप ये देखें ना कि अगर कॉल आती है अम्मी की या कोई भी हो, XYZ, जैसे अम्मी है, सास हैं, आपको फोन पे ही वो पूछ लेंगी कि कोई मसला है। ये एक मैं बड़ी हैरान होती हूँ कभी कभी। चेहरे से पहचान लेती हैं, चेहरे से पता चल आवाज जाता से है। पहचान लेती हैं। हाँ, आवाज से कुछ पता चल मसला है? जाता है। कोई प्रॉब्लम है? तो माँ तो फिर हो ही नहीं सकता नेमुल बदल माँ और बाप का बाज़ तो। औक़ात ऐसे होता है कि फोन पे कहा जाता है कुछ मसला है, दिल घबरा रहा था, हाँ, एक कनेक्शन होता है। और मैंने एक जगह पढ़ा था निदा कि माँ की आवाज अगर आप फोन पे भी सुने तो जहनी स्ट्रेस जो होता है, एंजाइटी होती है, वो 75 to 78% कम हो जाती है सिर्फ बात करने से। वाह, वाह, जस्ट एक वायर, फोन का वाह। वायर क्या मायने रखता है, वाह। लेकिन वो ताल्लुक देखें, अल्लाह ताला ने एक माँ और औलाद और बाप और औलाद का कैसा बनाया है, बेशक। कि क्योंकि इन रिश्तों में प्योरिटी है, Purity अल्लाह है। की अता है ये रिश्ते। वाह, वाह, ये वाह। जमीन से नहीं बनाए जाते। वाह। बाकी दोस्त अहबाब आप बनाते हैं, मगर वालिदैन और बच्चों का जो रिश्ता है वो अल्लाह की तरफ आपको से कोई अता भी हुआ है। आपके रिश्ता कुछ भी जितना भी आपके लिए पूरा एक होता है ना, हाँ। कि आपकी कोई भी जरूरत पूरी कर दे, लेकिन मैंने ये देखा है कि जो माँ बाप सोच रहे होते हैं और जिस तरीके से वो कर रहे होते हैं, आपकी सोच ही नहीं जा सकती वहाँ। है मौजूदा पेरेंट्स की मौजूदगी गर्म सूरज की मानंद होती है, जिसकी शायद हमें तमाज़त का एहसास होता है, लेकिन उससे हमारी लाइफ चमकती है, शाइन करती है। सुभान और अल्लाह। जो ना हो तो जिससे यकीनन अंधेरा छा सुभान जाता है लाइफ अल्लाह। में। क्या बात है, क्या जरमीना माइला से क्या सवाल करेंगी? माइला देख रही है, यार मेरा नंबर था भाई, क्या है भाई? नहीं, आज मायला कुछ चुप चुप भी है। हाँ ना, नहीं जरमीना सवाल करेगी माइला से। मैं माइला से ये पूछना चाहूंगी कि माइला अपनी ईद का दिन कैसे गुजारती है? मेरा ईद का दिन इस तरह गुजरता है, चांद रात वाले दिन जब चांद रात होती है तो उस रात हम जो है ना, मतलब मुझे एक्साइटमेंट होती है कि सुबह ईद है तो मुझे भाई के पप्पा के कपड़े प्रेस करके रखने हैं। अच्छा। तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होती है क्योंकि घर में सबसे बड़ी हूँ, तो मैं ये सारी अच्छा, चीज़ें काम करके करके खुशी होती है? बहुत पापा के भाई के खुशी कपड़े होती है। इस्त्री और करना? मुझे पता है कि जैसे घर में फोन होती है खुशी? खाते तो हैं, बहुत बहुत अच्छी। खुशी होती है। मैं खुशी खुशी सबके कपड़े प्रेस करती हूँ, फिर वो रात में छोले बना के रखना, अच्छा। फरमा, ये मस्ट है। तो मैं खुद बना के रखती हूँ ये कि पापा जब और भाई
नमाज पढ़कर आते हैं तो उन्हें लाजमी मैंने शीर खुरमा देना है मीठा। तो उस वक्त की सारी चीज़ें बना के फिर वो कबाब। अच्छा, ये मेहंदी तो बड़ी अच्छी लगी हुई है, बस चूड़ियों की कसर है। मुझे लगता है कि चूड़ियां भी होनी चाहिए हैं। है अच्छा है, नजर नहीं आ और रही। मेहंदी के साथ रात में कुछ हुआ भी है। हाँ, मेहंदी के चांद रात पे जो लगा के सोई है। मैंने ना इस हाथ में जो है अपनी बहन से लगवाई सीधे हाथ में, और मैं नींद में थी। मैंने कहा बस अब इतने काम कर लिए तो अब मैं लेट जाती हूँ, तो वो लगाई और मैं ना हाथ रख के सो गई। मेरी हाथ और तो अभी ये मेकअप से छुप गया। नाक पे जो है ना वो उसका निशान आ गया। मैं और कितना मजा आता है ना मेकअप का भी आपको शुक्र अदा करना मेहंदी छप जाए। मैं आप सब साथियों को माइला के बारे में एक और बात बताना चाहूंगी। माइला हमारी माइक्रोबायोलॉजी की वो है, माशाल्लाह से मास्टर्स कर रही हैं, और ये जब इनके पास बैठो तो ये इतने छोटे छोटे टिप्स देती हैं जो बड़े काम आते हैं। माइला से मेरी थोड़ी सी मुलाकात हुई और उसके बाद मेरे भी किचन में हैंड वॉश पहुंच गया और बाकी चीजों की भी मैं बहुत ज्यादा केयर करने लग गई, और उसमें बड़ा हाथ माइला का था। तवज्जो दिलाई। ईद के दिन के लिए थोड़ी सी टिप्स दीजिए। खवातीन जो है वो हाइजीन का जब ख्याल नहीं रखती तो क्या क्या हो सकता है? बिल्कुल, ईद के दिन जो है ना सबसे पहले, क्योंकि देखें सब घर में कुछ ना कुछ गोश्त की चीज़ तो बनती हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। तो इसमें आपने जब भी गोश्त को हाथ लगाएं तो कोशिश करें कि फौरन गोश्त को हाथ लगाने के बाद आपने हैंड वॉश करना है। और सबसे मेन चीज़ ये कि आपने अपने किचन में जो है एक बर्तन धोने का साबुन तो सबके किचन में होता है, लेकिन उसके साथ साथ हैंड वॉश लाजमी होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने जो हाथ गोश्त पे लगाए और फिर उस हाथ से आपने कोई और चीज़ पकड़ी तो बैक्टीरियाज उस पर लग जाते हैं, तो वो जर्म्स फिर इसी तरह स्प्रेड होना शुरू हो जाते हैं आपके किचन में, जो आपको पता भी नहीं लग रहा होता। लेकिन ये हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते, लेकिन ये जो हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं ना तो फिर ये हमें नजर आ रहे होते हैं कि कितने सारे जर्म्स हैं जो हमारे सराउंडिंग में। तो ये एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी हैं, यानी एक नाथुआ भी हैं, तो क्या क्या हैं आप, माशाअल्लाह। और सिर्फ इनकी बात नहीं है निदा, मैं समझती हूँ कि मैं जितने अपने QTV के स्टार्स को देखती हूँ, हर एक में एक बड़े छुपे हुए टैलेंट मौजूद है, और जिसके पास बैठो हम बहुत कुछ सीखते हैं। जाहिरन तो ये होता है कि स्कॉलर सिखा रहा है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि मैं जिसके पास बैठती हूँ मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारी टैलेंटेड बिल्कुल, हमारे ऑडियो इंजीनियर इतने खूबसूरत जबरदस्त कलाम हमारे रिकॉर्ड होते हैं, तो फिर कुछ तो बिल्कुल जरूरी है भाई, हमें नेमत की कदर के लिए जरूरी है ना आपा कि नेमतों का मुताला किया जाए, और जिस जिस जराए से हमें नेमतों का हुसूल हमारे लिए मुमकिन हो रहा है उसका भी शुक्र अदा किया जाए। बेशक, और आप देखें निदा, ये हमारे लिए बड़ी खुशबख्ती है, सादत की बात है कि अल्लाह ने हम सबको दीन से वाबस्ता किया है। और मैं इस हवाले से QTV के नाजरीन को भी मुबारकबाद देती हूँ कि जो दुनिया की दीगर चीज़ों को छोड़कर QTV को देखते हैं, इस्लामी बातें सुनते हैं, सीखते हैं, फिर हमें अप्रिशिएट करते हैं, फिर हमें फ़ोन करते हैं, तो बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। सादिया खुशी कैसे मनाती हैं अपनी ईद के दिन के हवाले से बताओ? मेहंदी, चूड़ी, कपड़े, अच्छे से हील्स या मेकअप, कौन सी चीज़ ऐसी है जो सादिया को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है और वो चाहती है ईद इसके बगैर तो भाई अम्मा मुमकिन ही नहीं है? मेरी ईद मेहंदी के बगैर मुमकिन नहीं है। मेहंदी जरूरी है, ठीक। अब वो चाहे पहले दिन लगे, दूसरे दिन लगे, अगर चांद रात पे टाइम नहीं मिला, लेकिन मेहंदी लगना अच्छा, बहुत पहले दूसरे दिन भी लग सकती है, बस मिलना चाहिए कोई लगाने वाला। और बाकी तो मेरे तो घर वाले कहते हैं मिल जाए तो तुम लगवा के छोड़ो, लगवा के छोड़ो। थोड़ा मसला हो गया ना, मेहंदी मिली नहीं सादिया, वरना हमारी शुमाइरा बहुत अच्छी मेहंदी आर्टिस्ट है भाई, बहुत अच्छी मेहंदी लगा। और अभी सेट पे सादिया यही कह रही थी, शुमाइला बाजी आप मेहंदी नहीं लाई वरना मैं जरूर लगवाती। हमने एक बार ईद मनाई थी जब, तो हमने लगवाई थी, शुमाइला ने, और बहुत प्यारी मेहंदी लगाई, बहुत। लेकिन एक और बात बताऊं कि सादिया ने मेहंदी क्यों नहीं लगाई। फाइनली सादिया ने रोटी बनाना सीख ली है, और अब सादिया पे जिम्मेदारी आ गई है। मैं रोटी बना लेती हूँ, बना लेती हूँ। हमने एक शो पे बनाई थी, बनाई थी ना? नहीं, अब जिम्मेदारी आ गई, अब जिम्मेदारी आ गई। नहीं आई अभी भी नहीं। तो मेहंदी तो जरमीना ने भी लगाई हुई है। सादिया की तरह मेरी ईद भी मेहंदी के बगैर इनकम्प्लीट है। एक मेहंदी, एक ड्रेस। जरमीना की एक बड़ी खास बात है, बहुत अशार इनको याद होते हैं। एक शेर सुनाइए, एक शेर ही क्यों ना सुन लिया जाए। जरमीना ब्रेक लेंगी। उनकी सरकार में भीड़ थी पर करम भी था, महवे इल्तिजा लोग थे, मैं था, हरम भी था, और लिखते जाते थे हर एक का मुकद्दर महमूद, जाने आलम के पास लोह भी थी और कलम भी था। वाह वाह। आज ईद का दिन है और हमारे प्यारे गेस्ट्स के चेहरों पे बहुत खूबसूरत मुस्कुराहट है। ईद के हवाले से खूबसूरत गुफ्तगू का सिलसिला जारी और सारी है। इस खूबसूरत गुफ्तगू को एंजॉय करने के लिए आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि हम आपसे मिलेंगे इस मुख्तसर से वक्फे के बाद। ईद आई, आने ईद मरहबा, शान
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम जनाब। हमारे साथ आपकी तमाम पसंदीदा मेहमान मौजूद हैं और आज चूँकि ईद का दिन है, मुझे लग रहा है कि थोड़ी भूख लगने लग गई है। नहीं, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा दावत का हमने एक ताम का एहतमाम किया है। क्यों आपा? तो हम इनको सब निदा आपने तो बहुत ज्यादा एहतमाम कर लिया आज। आपा ये भी तो सुन्नत है ना। बेशक बेशक। जनाब शान ईद में हमारे साथ गुलशन मेमार का एक बहुत ज़बरदस्त रेस्टोरेंट मोहसिन फूड्स, बहुत प्यारी सी हमारे पास वहाँ की मैनेजर भी मौजूद हैं और फ्लोर मैनेजर भी मौजूद हैं और हमारे मेहमान भी हैं। भाई क्या क्या लेकर आए? हमने तो आपको बुलाया और आप माशाल्लाह आ गए यहाँ पे। जी जी जी, क्या क्या है आज हमारे साथ? अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ जिमशा फ्रॉम मोहसिन फूड। जैसे हमारे पास चिकन ब्रोस्ट है, चिकन क्रैकर है, चिकन राई टिक्का, चना चाट, दही बड़े और शीर खुरमा। शीर खुरमा। अच्छा, ये ईद का दिन हो और शीर खुरमा ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है ना। तो मेरी सारी मेहमान बहनें, आप लोग खड़े ही रहोगे, बताइए क्या आपको पेश किया जाए। आइए आ जाइए, बताइए। मोहब्बत से खिला दें। बिल्कुल, हमने मोहब्बत से तो बुलाया, लेकिन अगर आप खाएंगे तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। बताइए, मैं निकालती हूँ क्या दूँ। हमारे पास क्रैकर्स हैं, चिकन क्रैकर्स हैं और ये टिक्का है, मलाई बोटी है, फ्राइज तो हम लोगों को इतना पसंद है यार। आप जरा थोड़ा सा आलिमा सादिया को भी बहुत पसंद है। हाँ फ्राइज शौक से खाती है। जी, आइए, और जरमीना को तो शीर खुरमा चाहिए। क्या क्या दूँ बताइए, जल्दी हाँ बताइए। जी। पहले तो मीठे से इब्तिदा कीजिए। मीठे से इब्तिदा करें। मीठे से मीठा आप निकाल के देंगी मुझे, वहाँ से निकाल के देंगी मुझे। उस तरफ आपको जाना पड़ेगा। आप लोग अपनी मर्जी से खुद ही निकालें, मैं प्लेटें दे रही हूँ। आप अच्छा, तुम लोग लो कर दे इत्तेफाक करें। मीठा चाहिए थोड़ा सा ये वो है ना बोलने से। शान ई जबरदस्त भाई। और शीर खुरमा ना हो क्यों, टीवी पे ये जबरदस्त सा शीर खुरमा भी मौजूद है, जबरदस्त। आपको मैं क्या दूं बताइए। चले, मुझे दही बड़े। दही बड़े। हमारे आमिर फयाजी भाई जो है ना, सबका ख्याल रखते हैं। आप ये देखिए, ईद का दिन है काफी और दही बल्ले भी मौजूद हैं। उन्हें मालूम है कि लड़कियां क्या क्या पसंद करती हैं। जी आप, मैं आपको क्या दूं, फोक दूं या जी, स्पून भी दे दीजिए तो। मैंने आपको दिया। अच्छा आपके लिए सादिया और जरमीना, महानूर, आपके लिए क्या निकालूं बताइए। निकाल रहे हो आप लोग? पापा कुछ और निकालें? नहीं बस ठीक है। थोड़ा सा शीर खुरमा नहीं खाए नहीं जाता। मोहसिन फूड्स की क्या बात है। आइए। वाह भाई जबरदस्त। तो आज कैसा लग रहा है आप लोगों को हमारे साथ ईद का दिन? आप लोगों ने ज्यादा लिया नहीं, मुझे लग रहा है कि कुछ और मुझे सर्व करना पड़ेगा। नहीं पापा, ईद का दिन होता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अगर हम अपने मेहमानों की सादिया शुमाइला की प्लेट से तो नहीं उठाया, आपने दिखाया तो नहीं। हम ऐसे ही तो कर रहे हैं। ऐसे ही होता है। नहीं, हमने आपस में मिलके लिया। हम ऐसे ही कर रहे हैं एक दूसरे की प्लेट से। अच्छा आपा, दही बड़े आपा को पसंद है? हाँ जी, अच्छे हैं। पसंदीदा खाने आपा के कौन कौन से हैं? सब कुछ खा लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब चखती जरूर हूँ, जो चीजें दस्तरखान पे मौजूद हों। जी, तबीयत में ये रहता है कि ये नेमतों का भी शुक्राना है। बेशक, कि आप उनको टेस्ट जरूर करें, बेशक। घर वालों की तारीफ करें जिन्होंने बेशक। रखा है बना के, जिस तरह से भी ये तमाम किया है। तो आज हमारे साथ मोहसिन फूड्स ने, ARY QTV की पूरी टीम के लिए, हम सब के लिए, और हमारी खुशियों में वो इस तरह शामिल हुए, तो हमें उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। और अल्लाह पाक इनके काम में मजीद बरकतें अता करें। अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा। और आपको मोहसिन फूड्स की बिरयानी भी बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। हमने लास्ट शो में बिरयानी ट्राई की थी, बहुत अच्छी थी। अच्छा, ईद के और ये एक हक भी है जो मेजबानी कर रहा हो कि आप उसे दुआ जरूर दिया करें। हमारी दुआएं हैं मोहसिन फूड्स के लिए, बिल्कुल, बहुत। और आमिर फयाजी भाई के लिए, हमारी पूरी टीम के लिए, इस्माइल भाई के लिए, उमैर के लिए, मोजिद भाई के लिए, सब हैं हम सबका। सबसे बड़ी बात ये है कि हम जब यहाँ आते हैं तो ऐसा नहीं होता कि बस बैठे बुलाया और फिर अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, ख्याल भी रखते हैं। सही बात, ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है।
کوئی شعر سنا دیں, کوئی کھانے پینے کے, کوئی سوئیاں پکی ہیں, سب نے چکی ہیں, تم نہ روز سعدیہ تمہارے لیے بھی رکھی ہیں. سوئیاں لی کس نے ویسے؟ سوئیاں تو لی ہیں زرمینہ نے, تم نہ. مائلہ نے بھی لی ہے, مائلہ نے بھی لی. زرمینہ کیسی ہیں سوئیاں, یہ تو بتا دو. بہت زبردست, بہت ڈیلیشیس, مجھے بہت پسند آئیں. کوئی شعر یاد آ رہا ہے سوئیوں کے حوالے سے, کوئی قطع یاد آ رہا وہی والا تھا جو بھی آپ نے میرے منہ کی بات چھین لی. ہے؟ تم نہ روز سعدیہ تمہارے لیے لیے رکھی ہیں. مانور یہاں پہ کوئی کینچی کا بندوبست نہیں ہے تو تم نے منہ سے, اب میں بھی خود بتا دیتا ہے منہ سے ہی چھین لیتی ہوں. دیکھو وہ مائکرو بایولوجسٹ بیٹھ کے پکڑ لے گی ابھی, ہے نا بھائی؟ یہاں سے پتہ چل رہا ہے بچے ہمارے ساتھ ہیں. ہاں وہ مطلب ہم لوگوں نے دونوں نے نا Share کیا ہے. کیچپ کی شیئرنگ کی کی ہے. تو انہوں نے کہا Sharing کہ is ایسا کرو caring. کہ آپ یہ کام سر انجام دو, تو وہ نیک کام سر انجام دے رہی تھی. پائے ہوئے ان کی جو چھولے کی چاٹ ہے یہ بہت اچھی بہت مزے کی. مے بی آپ نے کسی نے نہیں لی Try ہے, میں نے لی ہے بہت اور مجھ سے شیئر کر سکتے ہو. بہت اچھی, بہت زیادہ. اور ملائی میں نے ملائی بوٹی لی ہے, ملائی بہت ٹکا لذیذ ہے. بہت زبردست, بہت زبردست. ادھر ملائی بوٹی میں نے ٹرائی نہیں کی. میں نے ملائی بوٹی آپ مجھ سے لے سکتی ہیں. ان کے چکن کریکرز بھی اچھے ہیں. کریکرز مجھے, میں پورا نہیں لوں گی, میں یہ لے لیتی ہوں جو آپ نے کھایا ہوا ہے. شکریہ آپ کا. یقیناً ہمارا یہ کھانا دیکھ کے ناظرین کے منہ میں بھی پانی آ رہا ہوگا. اگر آپ تمام بھی کھانا چاہتے ہیں تو محسن فوڈ سے کانٹیکٹ کیجیے, یا معمار میں محسن فوڈز کی برانچز ہیں, وہاں جائیں اور یقیناً ضرور انجوائے کیجیے. لیکن آج ہر گھر میں کچھ نہ کچھ ویرائٹی میں کھانا بنے ہوئے ہوں گے. ظاہر ہے عید کا دن ہے اور ہر ایک اپنے مہمانوں کو سرو کر رہا ہوتا ہے. آپ کیا اچھا پکا لیتی ہیں؟ کچھ نہ کچھ تو آپ پکاتی ہوں گی, ایسا بھی نہیں. دیکھیں ندا, ہمارے ہاں جو عید ہوتی ہے, عید الفطر جو ہوتی ہے, فرسٹ ڈے ہمارا جاوید صاحب کے بھائی کے گھر پہ ہوتی ہے دعوت, تو ہم سب وہاں گئے ہوتے ہیں. اور سیکنڈ ڈے جو ہے وہ سب لوگ ہماری طرف آئے ہوتے ہیں. تو سیکنڈ ڈے کا دن ہمارے گھر پہ اہتمام ہوتا ہے. تو چونکہ ان کے بچوں کو فاسٹ فوڈز پسند ہیں تو زیادہ تر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ باہر سے ہمیں منگوانے پڑتے ہیں کہ بچے خوش ہو جائیں. صحیح. لیکن گھر میں بھی کوکنگ ہوتی ہے, چاول وغیرہ, پلاؤ مجھے پسند ہے, بنا لیتی ہوں میں. اچھا, کبھی آپ لوگ آئیں, آپ کو ضرور کھلاؤں گی انشاءاللہ. تو اسی طرح. اور سیکنڈ ڈے تو آپ کا وہ ہے, تھرڈ ڈے ہمارے ہیں آپ کے. ضرور ضرور ضرور. زرمینہ تھرڈ کیا, یہ میرا دوستوں کے نام پہ, آپ سب کے نام پہ, آپ سب بچوں کے نام پہ. شکریہ. زرمینہ کیا اچھا پکا لیتی ہیں؟ میں بریانی بہت اچھی بنا لیتی ہوں. ویسے تو یہ آپ کھا کے ہی بتا سکیں گے کہ میں کیا اچھا بنا لیتی ہوں, لیکن آئی تھنک بریانی اور ٹرائفل کی جو ریسیپی ہے وہ میری فرینڈ عبید نے مجھے بتائی تھی, اور وہ بہت ڈیلیشیس بنتا ہے. اور پرسنلی مجھے میٹھا بہت پسند ہے, سو میں نے آج شیر خورما لیا. اور شگفتہ کیا اچھا بناتی ہے بیوقوف کے علاوہ؟ اب دیکھیں آپ خود ہی کہہ چکے, یہ بتا دیا تھا کہ ہلکا ہاتھ رکھنا. دیکھو اب یہ تو آپ نے کہہ ہی دیا ہے کہ میں بیوقوف بہت اچھا بنا, یعنی سب بن چکے ہیں میرے ہاتھ. ٹھیک ہے, تو اس کو تو آپ سائڈ رکھیں. ویسے سب کچھ دل اچھا پہ بنا. نہ لینا, تمہاری نہیں بہت پیاری نہیں, بہن. حقیقت ہے. اگر دیکھیں آپ اس کا مطلب سب بن چکے ہیں. یہ کمال تو ہے مجھ میں. اچھا, کھانے میں میں جو ہے وہ سب کچھ بہت اچھا بناتی ہوں, لیکن مال پوڑا سب سے زیادہ اچھا بناتی ہوں. مال پوڑا کیا, کون سی ڈش ہے یہ بتائیے؟ مال پوڑا ایکچولی میمن ہمارے یہاں زیادہ تر بناتے ہیں, اور اس کا کمال یہ ہوتا ہے کہ ایک تو بہت ٹریڈیشنل ہے اور ڈیزرٹ کے طور پہ یوز کیا مال جاتا پورا ہے. وہ ہوتا ہے نا جو کچوری ٹائپ موٹے نہیں، نہیں، میں اندر وہ کیا ہوتی ہے, ذرا اس کو ڈش کو بتائیے, ڈیفائن کیجیے. میدا لیا جاتا ہے, اس میں سوجی لی جاتی ہے, انڈے ہوتے ہیں, چینی ہوتی ہے. اب سارا کمال یہ ہوتا ہے کہ بیٹر کے بعد اس کو بنانے کا, کیونکہ اکثر لوگ اس کو فرائی کرتے ہوئے وہ توڑ دیتے ہیں. اچھا. اس کو ایک بٹھانا, اس کے بعد پھر اس کو فرائی کرنے کے بعد ایک کلر آ جائے, اس کے بعد اس پہ کریم ڈالی کے اندر جاتی کچھ ہے. فل بھی کرتے ہیں. نہیں, اس پہ کریم لگتی ہے, سارا خشک میوہ جات جو ہوتا ہے وہ ڈالا جاتا ہے. زیادہ تر اس کے رولز بنائے جاتے ہیں. وہ میٹھا ہوتا ہے یا نمکین؟ میٹھا. اچھا, سویٹ ڈش کے طور پہ یوز ہوتا بہت سے ہے. لوگ لیکن اس کو شیرے میں بھی ڈپ کرتے ہیں شاید. نہیں, شیرے میں وہ بنتا ہی نہیں ہے. وہ پھر کوئی وہ شمارہ نے بنا دیا, کرا دیا شمارہ نے شیرے میں ڈپ. سنا تھا, لیکن بڑے مزے کے ہوتے ہیں. تو یہ کوئی مطلب میمنی ڈش؟ میمنی ڈش ہے, انہوں نے بتایا. میمن ڈش تو نہیں کہہ سکتے, لیکن زیادہ تر بنائی جاتی ہے. اچھا, تو یعنی رمضان المبارک میں خاص اہتمام ہوتا ہے اس کا. جیسے میمنز کی ڈش ہے کھاؤسا. مجھے بھی بہت اچھے لگتے ہیں. انشاءاللہ اس بار ہماری میٹنگ پہ یہی ہوگا. مانور کیا بنا لیتی ہیں, مانور کیا شوق سے کھاتی ہیں؟
मैं बना लेती हूँ, मतलब मम्मा की हेल्प कर देती हूँ, और उसके अलावा जो है वो सोच के बोला तो कुछ नहीं बनाती है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं घर में अभी जो है- छोटी है ना, सीख रही है ना अभी। नहीं, मैं घर में मतलब ये है कि आप मुझे अगर कुछ टास्क दो घर में, जो है भाई को, मम्मा को, अगर कुछ मैं बनाती हूँ तो भाईजान बहुत शौक से खाते हैं। मैं बैगन आलू जो है वो सबसे अच्छे बनाती हूँ, और उसके बाद जो है वो आलू और मटर के जो पुलाव होते हैं वो भी बनाती हूँ। वो मतलब ये टॉप 2 आप कह सकते हो कि ये डिशेस जो हैं वो मेरी घर में जो है ना बहुत पसंद की जाती हैं। उसके अलावा जो है वो कढ़ाई भी मैं बना लेती हूँ। और आपको तो पता है आजकल इतनी हमारे लिए सहूलत हो गई है कि यूट्यूब से आप देख के बना सकते हो। तो मैं ज़्यादातर जो है ना वो यूट्यूब से ही देख के, आप कह सकते हो, एक्सपेरिमेंट करती हूँ, बट वो एक्सपेरिमेंट जो है और वो बिल्कुल ही पास हो जाता है। अच्छा, Mission complete मानूर होता है। कितना अच्छा बोलने लग गई है ना, माशाल्लाह बेटा। यानी हम हैदराबाद जाएंगे तो हम भूखे नहीं रहेंगे। हाँ। अगर आंटी ना हुई तो महानूर हमें बना हाँ, मुझे इंशाल्लाह। बहुत खुशी होगी आप लोग महानूर सब को आए। हमें इनवाइट करना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आप सबको इनवाइट देखो मैंने आज आप सबको इनवाइट किया, और मोहसिन फूड्स ने कितने अच्छे अच्छे खाने हमें खिलाए, तो अब मानूर हमें बुला रही है। इंशाल्लाह आप लोग सब आएंगे। कुछ सुना रही है, कुछ सुनाएंगी हमें, कोई ईद का कलाम, कोई शेर, कोई नज्म जो इस वक्त ज़हन के नक्शे पे उभरे, कोई भी कलाम, कोई अच्छा सा शेर सुना दो। कोई शेर सुना दो, दुरूद पढ़ लो, कोई नात सुना दो। दुरूद पढ़ लो। सल्ली अला नबीना सल्ली अला मुहम्मदिन सल्ली अला शफीना सल्ली अला मुहम्मदिन। हम भी मदीने जाएंगे, आज नहीं तो कल सही, आका हमें बुलाएंगे, आज तो कल सही। सल्ली अला हबीबिना सल्ली अला मुहम्मदिन। सुभान सुभान अल्लाह, अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। सादिया ब्रेक लीजिए जरा। टिक्का खाते हुए, लेकिन सादिया टिक्का खाते हुए ब्रेक ले रही हैं। एक मैं शेर के साथ, जैसे माशाल्लाह जर्मीना ने शेर सुनाया, तो बस एक रूह जाग गई मेरे अंदर भी। तो बहुत पहले किसी ने मुझे ऑटोग्राफ दी थी और मुझे शेर लिख कर दिया था जो मुझे बहुत पसंद है कि आसानियों से पूछना मंजिल का रास्ता, अपने सफ़र की राह में पत्थर तलाश कर, जर्रे से कायनात की तफसीर पूछ ले, कतरे की वसअतों में समंदर तलाश कर। हम सब ईद की खुशियाँ आप सबके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह अपनी मोहब्बतों का इजहार करेंगे, हमारे साथ शामिल रहेंगे। मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ईद आई, ईद आ, शान ईद मरहबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जनाब शान ईद, ईद की खुसूसी नशरियात आप देख रहे हैं हमारे साथ। जनाब हमें ज्वाइन किया है ब्रेक से कबल महानूर हमारे साथ थी, हैदराबाद से स्पेशली तशरीफ लाई थी, और अब हम सब की बहुत ही प्यारी हंसती मुस्कुराती हबीबा शुएब ने हमें ज्वाइन किया है। लेट्स वेलकम हर। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। खैर आपको, मुबारक। सबको देखने वालों को भी ईद मुबारक। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत अच्छा, और आप हबीबा को देख के पता चल रहा है है ना, कि ईद मैं का क्या दिन ना, है। हम लोग यही बात कर रहे थे अभी आने से पहले कि बहुत अच्छा लग रहा है, और तुम्हारा स्कार्फ का स्टाइल भी हमेशा कुछ डिफरेंट होता है।
तो ये क्या कुछ देखती हो फिर प्रैक्टिस करती हो, है ना? हमेशा मेरी कुछ असल में बनाते बनाते मेरी प्रैक्टिस हो गई ना, तो ये जल्दी से बन जाता है। पहले तो बहुत टाइम लगता था, अब अम्मी महफिलों में भी जाना होता है, अम्मी इंतजार कर रही थी स्कार्फ बनेगा तो जाएंगे, स्कार्फ बनेगा तो जाएंगे। और एक इनकी वजह से बच्चियों में ये ट्रेंड आया है कि हम अच्छे से हिजाब लिया करें, और ये बड़ी अच्छी खुशाइन बात है। बहुत अच्छी बात है। अब ये देखिए कि बच्चियां जो पहले ये सोच रही होती थी कि किस तरह से हेयर डू हो, किस तरह से हेयर कट हो, वो अपने बालों को कवर कर रही हैं, वो स्कार्फ्स ले रही हैं नित नए तरीकों से। आपको ये कितना अच्छी बात है। और इससे ग्रेस आया ग्रेस आ है जाता एक है। पूरी सोसाइटी में एक। और आप देखिए तो कराची में माशाल्लाह हिजाब का बहुत ज्यादा ट्रेंड है। रंग नजर आता है। कैसा दिन गुजरता है ईद का? ईद का दिन बहुत, पहले तो नमाज वगैरह से फारिग होकर, पहला दिन तो मेरी 3 माशाल्लाह बहनें हैं ना, मुझसे बड़ी शादीशुदा हैं, तो हम कहीं जा नहीं पाते क्योंकि उन्होंने आना होता है। हाँ। तो तीनों बहनें आती हैं फर्स्ट डे ईद के, भाई वगैरह आते हैं, भाभियाँ, कजन्स, चची, चाचा, और दूसरे दिन हम जाते हैं ताया के घर, और तीसरे दिन फिर दावत होती है हमारे घर सारे ख़ानदान वालों की। तो ये 3 दिन तो इस तरह गुजरते हैं। फिर चौथे 5वें दिन ऐसे दोस्तों के साथ फिर ईद गुजरती है। इस तरह ईद का दिन ऐसे गुजरता है। ज़बरदस्त। और ये जो हम कलाम सुन रहे हैं, हाँ, शान ईद मरहबा, ये किसने पढ़ा है? ये भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आमिर भाई के साथ मिलकर इसको पढ़ा था। अगर आप बोले तो मैं पढ़ दूँ? नहीं, हम सुनेंगे आपसे, लेकिन अभी ज़मीरा मुझे पता नहीं ऐसे ऐसे करके देख रही है, बार बार देख रही है कि मुझसे कोई कुछ कहना चाह रही हैं, कोई वाकया शेयर करना चाह रही हैं। वाकया यही है कि जो ईद से शादी से पहले जो ईद होती थी उसमें मैं एहतिकाफ का एहतमाम किया करती थी, तो अभी मुझे अचानक से याद आया तो मैंने सोचा मैं सबसे शेयर करती हूँ। क्या बात कि उस है, वक्त की जो माशाअल्लाह। ईद होती थी, आप भी अल्लाह का शुक्र है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, नो डाउट, लेकिन आपकी जो गोल्डन मेमोरीज हैं वो आपके जहन के नक्शे पर उसी तरह जमी रह जाती हैं कि जब भी आप उनके बारे में सोचते हैं तो आप एक सरशारी में मुब्तला हो जाते हैं, खुशी की कैफियत आपके अंदर आ जाया करती है। तो मैं एहतिकाफ से उठती थी और फिर मेरी फ्रेंड्स आती थी, फिर वो एक महफिल सी सज जाती थी, एक रौनक सी लग जाती थी। सही। तो वो जो फीलिंग है वो आज तक उसकी मिठास मुझे महसूस होती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे बिल्कुल वो मनाजिर अभी हमारे सामने। अच्छा, ज़मीना जब छोटी थी तो ज़मीरा शरारती थी या बड़ी शर्मीली सी या मैं बहुत- संजीदा सी बच्ची? नहीं, मैं संजीदा बिल्कुल नहीं थी। सच बोलना चाहिए, ईद का दिन है और ईद सच बोलने का भी नाम है। डेफिनेटली प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का प्यारा अमल, हमेशा सच बोलना चाहिए। बाकी दिन भी सच बोलना। डेफिनेटली सही बात। तो मैं बहुत शरारती थी जब छोटी थी। पेरेंट्स बताते हैं, वो यादें ताज़ा करते हैं, तो मैं बहुत शरारती हुआ करती थी। इम्तियाज आपा जब बचपन में इम्तियाज आपा थी, छोटी सी इम्तियाज आपा कैसी थी? छोटी सी और इम्तियाज आपा, हाँ, कितना ये कमाल है, ये कमाल है। ये कमाल। देखिए ईद का दिन तो हर एक के लिए खुशियाँ लेकर आता है, तो वो एक रवायती जो है वो उसका रंग हमेशा पाया गया हमारे मुल्क पाकिस्तान में, हमारे सोसाइटी में। तो मुझे भी याद पड़ता है कि जब मैं उससे पूछ रही थी मानूर से कि ड्रेस जब इस्त्री करके पड़ा होता है तो रात को नींद नहीं आती, कब सुबह होगी, कब हम ये ड्रेस पहन कर निकलेंगे दोस्तों में और ईदी मिलेगी, और उसका एक अपना रंग होता है। बेशक आप हमेशा बचपन के उन दिनों की मिठास को महसूस करते हैं। आपा शरारती थी, अब संजीदा थी? बस एक एवरेज, जैसे आप कहें कि कोई इतनी संजीदा भी नहीं थी। कौन सा नंबर था बहन भाइयों में? बहन भाइयों में मेरा छठा नंबर। छठा नंबर। तो बड़े बहन भाई रोब जमाते थे, डांटते थे या नहीं? लेकिन निदा मैं इस हवाले से बहुत लकी रही हूँ कि मुझे सबकी बहुत मोहब्बत मिली है। मैं कहती हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें मुझे माला माल रखा है। बहन भाइयों की सबकी किसी न किसी की आपस में हो जाती थी अनबन या कुछ ऐसे कभी कभार, लेकिन मुझे सबने बहुत प्यार दिया है। क्या बात। मेरी सिस्टर्स दोनों, मुझसे काफ़ी गैप था उनमें, मेरी बड़ी सिस्टर जो है उनमें और मुझ में 10 साल का गैप था। अभी दोनों का इंतकाल हुआ है पिछले दिनों में, थोड़े थोड़े वक्फे के साथ। तो दोनों की रुखसती का मुझे दिल पे ऐसे पड़ी है वो कि बहुत शफकत, बहुत मोहब्बत। ईद के दिन आप अपने प्यारे भी तो याद आते हैं। बिल्कुल ऐसी, और इसी तरह बड़े भाई भी चले गए, तो इन तीनों की डेथ्स जो है बिल्कुल आगे पीछे हुई है अभी थोड़े अरसे के दौरान। आमीन आमीन। शुमाइला बचपन में कैसी थी? शुमाइला का ईद का दिन कैसा गुजरता था? अभी भी हंस रही है शुमाइला। पेशन कोई कर रही है। नहीं, हमारी वालिदा कहती हैं कि हमारे बच्चे बहुत शरीफ थे। अब हमारे बच्चों को जैसे देखा जाता है जो शरारती हैं और मतलब एक जगह बैठते नहीं हैं, तो ये सुनने में यही आता है कि हमारे बच्चे थोड़े सही थे, ऐसे नहीं थे।
اور ऐसे बाकी बच्चों को हमारे नसीम भाई कहते हैं बेचैन गोटी। हाँ, वाकई माशाल्लाह बड़े एक अच्छा नहीं फुर्तीले के साथ और अब अपने भी तो बेचैन गोटी हैं। हाँ हाँ और अब अपनी औलाद भी शरारती के बेचैन साथ जो है वो माइंड के बड़े शार्प हैं आजकल हर बच्चे चीज़ ना, pick हर करते चीज हैं। पिक करते हैं और हर चीज को करने की कोशिश करते हैं। सही बात कि आप अगर कोई देख भी लें या आप जैसे मिसाल अभी हम गाड़ी में बात कर रहे थे, जैसे आपा से मैं बता रही थी कि कल मैं कलाम एक पढ़ रही थी मुजफ्फर वारसी का, वही खुदा है। तो अब्बास अहमद छोटे वाले जो है वो आज सारा दिन जो है वही खुदा है वही खुदा है जोर जोर से घर में पढ़ रहे थे वो। तो बच्चे आजकल, और सबसे अच्छी बात और खुशी की बात क्या है कि हमारा जो एआर बाई QTV का माहौल, फिर जो हमारी निशिस्त होती है जिसमें हम सीखते हैं, आपस से सीखते हैं, और भी बहुत से स्कॉलर्स हैं, और अब जो हम उन चीज़ों को अप्लाई कर रहे हैं अपने बच्चों पे, तो इससे बढ़कर खुशी की बात कोई नहीं है कि हम वापस उस तरफ आ रहे हैं जो हमारा दीन है, उस तरीके से हम परवरिश करने की कोशिश कर रहे हैं। याद होगा आपको, मैंने आपको बताया था नियत का भी कि इतनी अच्छी नियत आपा ने बताई है आप और बता दें दोबारा। सिखाई आज भी है। ईद के दिन भी हम अच्छी अच्छी नियतें करेंगे। आप बिल्कुल सीरियसली बाखुदा मेरी अभी एक ज्यादा अरसा नहीं हुआ है, हम करते हैं इस हवाले से बार बार बात करते हैं। हाँ, लेकिन एक महीने में बहुत चेंज आया है। कहीं भी कि आपको जाना है, है, उन्होंने बताया ये नियत बस कर लो। ये नियत कर लो। अना उरीदु वजीगा, क्यों आप डिटेल आप बताएंगे? अच्छा, कभी आप कि मुझे नर्म मिजाजी और सादगी और आहिस्तगी शगुफ्तगी पे मैं मिट जाती हूँ, मैं फिदा हो जाती हूँ, और कभी जो आपा का जो मिजाज में जो ये शोला बयानी है आपा, तो आप कैसे बैलेंस करती हैं माशाल्लाह? ये मैं अभी आपने बात शुरू की तो मैं सोचने लग गई कि सब लोग मुझे कहते हैं कि आप बड़ी हार्ड बोलती हैं, मतलब एक फौरन ही स्पीच का सा स्टाइल आ जाता है। और पता है पापा कि हमारे ऑडियो इंजीनियर घड़ी घड़ी कहते हैं माइक पीछे करवाइए, माइक पीछे करवाइए। हाँ आपा जी, लहरें बहरें कर दी हमने। पता नहीं क्यों एक आदत सी बन गई है कि हक बात हो तो उसे डट के करो, जम के करो, अगले को लगे जाकर कि आप हक पर खड़े हैं। और ये सिर्फ आपकी बात में ना हो, आपके अमल में भी हो। अच्छा। कि किसी मजलूम के लिए आप खड़े हो तो डट के खड़े हो। क्यों हमारे मुआशरे से वो शुजात, वो हक बात के लिए डट जाना खत्म होता जा रहा है। और मैं नाजरीन आप सबसे ये शेयर करती हूँ, मैं इन सब से मिलती हूँ, ये मुझसे पूछते हैं ये सब लोग कि हम बच्चों की तरबियत कैसे करें। निदा तो बहुत ही ज़्यादा सवाल करती है, तो मैं बड़े यकीन से कहती हूँ कि जब आप लोगों के अंदर वो मोहब्बत होगी तो वो यकीनन हमारी नस्लों में जाएगी, और उस नस्लों में जाते हुए एक मोमिन और मुजाहिद तैयार होंगे। तो मैं ये बड़ी पुरुमीद हूँ अपने मुस्तकबिल से, आने वाली नस्लों से, कि ये माएँ उनकी तरबियत करेंगी तो वो इंशाल्लाह एक अच्छी नस्ल नौ मिलेगी पाकिस्तान और को। वो जो इस नियत है माशरे वो को। नियत बता जरूर दीजिए। करेंगे हम। जी, नियत का इन्होंने सवाल किया है तो आप सबने सुना भी होगा, मैंने उसे 2-3 मरतबा QTV के प्रोग्राम्स में भी कहा कि एक हदीस मुबारका है कि रवायत उसका मफहूम ये है कि एक बंदा लेकर जाएगा आमाल, और उसके बड़े ख्याल होगा कि मेरे पास बहुत नेकियां हैं, मगर जब अल्लाह की बारगाह में पेश होगा तो वो सब रद्द कर दी जाएंगे। पूछा जाएगा, फरिश्ते कहेंगे कि इसने ये नेक अमल किए थे, हमने लिखे थे इसके नाम अमाल में, तो अल्लाह फरमाएगा कि ला उरीदो वजही, ये मेरी रजा की नीयत न थी। तो वो थे तो नेकियां, मगर वो सारी नेकियां रद्द हो गई कि उसकी रजा की नीयत न थी। तो मैंने उस पर इन सब से भी कहा और आप लोगों से भी कहा कि जब भी नेक काम करने लगे तो पहले ये जुमला बोलें, आना उरीदो वजह का, ए अल्लाह मैं तेरी रजा की, तेरे मुकड़े की, तेरे दीदार की नियत करती हूँ कि ए अल्लाह इसे कबूल फरमा। तो जब भी जायज काम, अच्छा काम, नमाज जैसा काम आप करने लगे तो जरूर एक दफा ये जुमला दोहरा लिया करें, आपको बात याद आ जाए। इतनी अच्छी इसका मैं बताऊँ ना, मैंने जो तजुर्बा मुझे और इतना अच्छा एक्सपीरियंस इसका रहा है निदा, 1 महीने में ही, कि अब जैसे कोई काम आपका बंदा बशर तो है ना, अना भी आ जाती है, लेकिन उससे उसकी खुशी से बढ़कर नहीं है। तो जब कभी ऐसा हो कि नहीं मैं क्यों करूं, मैं क्यों ऐसा हो, फौरन मैंने ये नियत की कि तेरे लिए आसानियां हो गई, इतना आसान हो गया सब कि उसके लिए कर रहे हैं ना, उसकी रजा के लिए कर रहे हैं, तो खत्म करें आना। सही बात तो है। बहुत अच्छा। और सबसे स्पेशली बात आपा के लिए कहना चाहूंगी कि चाहे ये गुस्से से बोलें, मोहब्बत से बोलें, लेकिन जब कोई सवाल हम इनसे करते हैं और ये हमें समझाती हैं, तुम यकीन करो बाखुदा उस पर अमल करने का दिल चाहता है। सुभान और अल्लाह, उसको माशाअल्लाह। फिर करने के बाद जो तस्कीन मिलती है वो बयान नहीं की जा सकती। तुम अभी भी मुस्कुरा रही हो, क्या दिमाग में चल रहा है ये बताओ?
नहीं नहीं मुस्कुरा रही हूँ कोई बात वो मुस्कुराहट सिर्फ इस चीज की है कि वो जो आप नियत कर लेते हैं बस वो कबूलियत का दर्जा पा सुभान गए। अल्लाह सुबह। सादिया बचपन में कैसी थी जरा बताओ। तुम बताओ नहीं, मुझे तो पता है, ये खुद भी बताएगी। ईद के दिन कह रही थी ना सच बोलना चाहिए, तो देखते हैं बताओ। नहीं लेकिन ये बात तो बिल्कुल ये बिल्कुल सच हकीकत बताऊंगी कि कि मैं मैं बचपन में नहीं मैं बचपन में इतनी शरारती नहीं थी जितनी शरारती निदा थी। निदा बचपन में बहुत शरारती थी और इसको मुख्तलिफ अलकाबात से भी नवाजा जाता था जो मैं अभी नहीं शेयर करना चाहूंगी। लेकिन ये है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, बड़ी होती गई निदा, तो उसमें एक संजीदगी आती गई, और यहाँ लेकिन मैं बड़ी होती गई तो मुझमें से वो संजीदगी कम होती गई। तो बस ऐसा रहा। लेकिन शरारती तो थी डेफिनेटली, लेकिन इतनी नहीं थी कि जितनी निदा थी। लेकिन जो अलकाबात आप नहीं बताना चाह रही वो सबके साथ है माशाल्लाह। सबके साथ है। तमाम जो अच्छी माएँ तरबियत करती हैं वो हर अलकाबात से नवाजती है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन शगुफ्ता तभी का आज ये मकाम है। शगुफ्ता का बचपन कहाँ गया भाई? अभी है इनका बचपन तो चल रहा है, अभी भी है, अभी भी है। इनका बचपन बचपन भाई मैं एक ही बात कहती हूँ बचपन हमेशा, में बचपन है। बिल्कुल मेरे दिल के कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देखकर दुनिया बड़ा होने से डरता है। हाय, हाय। तो अपने अंदर बचपन लाएं। आप, मैं कहती हूँ आप 100 साल के भी हैं, आप अपने अंदर बचपन लाएं। आपके अंदर बचपन होगा तो आपके अंदर कुदूरत नहीं होगी, आप में बग़ज़ नहीं होगा, आप में कीना नहीं होगा, सबसे बढ़कर आप प्योर रहेंगे। छोटा बच्चा ईद मुबारक कह रहा है हम सबको। चलो छोटी शगुफ्ता आ गई। हाँ हो जाए। नहीं करो ना चलो। तुम्हारे लिए तो आसान है। हाँ देखो कहिए तुम्हारे लिए तो आसान है। नहीं, मेरे लिए तो आसान वैसे ही है। करती रहती है ना बच्चों। तो छोटे बच्चे तो ऐसे ही बात करते हैं। आपने हम ना अंबर की याद दिला दी, और बेचारी ऐसी बातें करती है। वो और याद आ गई मेरे को, अंबर याद आ रही है। अंबर याद, अंबर अशरफ होती है ना, हथा हथा के पेट में कुलबुलियां मचा देती है। नोरीन फाइज याद नहीं आ रही। नौरीन, अल्लाह, सूर्या फही याद नहीं आ रही। और सादिया सादिया से भी तो पूछे ना, सारी शरारतें हमारे से पूछनी, अपनी बहन से कुछ नहीं पूछनी। आप गलत बात होती है, मैं बता रही हूँ। ये तो लड़ाकू बच्चा आ अच्छा गया। चलो बच्चे ब्रेक लो। तो शरारती बच्चे तो ऐसे होते हैं ना। अच्छा बच्चे चलो ब्रेक ले लो। नहीं, बच्ची बड़ी होके ब्लैक लेगी। नहीं बली हो के नहीं, बचपन में ही ब्रेक ले लो, जल्दी से ले लो। माशाल्लाह से हम सारे मासूम बच्चे यहाँ बैठे हैं और अल्लाह ने हमको तौफीक दिया, हम यहाँ पे आके बैठ गए ना। तो अब आपसे गुजारिश है, हम जैसे दुरूद पढ़ते हैं, नाते पढ़ते हैं, आप भी ऐसे नाते पढ़े। और हम अभी जाते हैं, फिर वापस भी आएंगे। आपने दोबारा हमारे साथ यहाँ पे ज्वाइन करना है। ईद आई, ईद आई, ईद आई, ईद आई, रंग खुशी के साथ मिलाई। ईद आई, ईद आई, शान ईद मरहबा, शान ईद मरहबा, शान ईद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दीनी मालूमात और अहकामात पे मबनी प्रोग्राम्स देखने के लिए हमारे चैनल ARYQTV को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपके पसंदीदा प्रोग्राम्स मिस ना हो।